everyone. Strength and growth only come from continuous effort and struggle. After glory at the Tokyo Olympics, our Paralympians have brought honor to the nation, overcoming great odds, both physical and mental, to raise the stature of the tricolor. With a phenomenal haul of medals and record-setting performances, these inspirational athletes from the heartland of India make us believe in the old adage that heroes aren't born, they are built. Joining me on the show to share their stories of grit and determination are these phenomenal athletes. Yogesh won a silver medal in discus. Bhavina Patel, table tennis player, a silver medalist. Nishad Kumar, who won silver in track and field. Sumit Antil, javelin thrower, won that glittering gold. Also on the show is Deepa Malik, President of Paralympics Committee of India. Let's start with you, Deepa. Congratulations on what has been a phenomenal performance by the Paralympians at the Tokyo Paralympics 2020. Would you say that the team exceeded expectations as far as the performance is concerned, or would you say that this is what you were expecting? No. I would not say that we exceeded the expectation. We are still hoping to get more medals because we definitely said double digit, but we want better double digit. And we are pretty positive that we will add a few more to the kitty. And as far as happy with the performance, definitely, because so far we've seen that the medals are coming in and they're coming in with amazing results. Absolutely. When I say results, which means that there is a very strong and tough competition that they have faced. They have given world's best people a run for their money. Especially when I talk about Bhavina's table tennis, the Chinese ground was totally shaken up. Sumita Antil just came and he conquered and he conquered and he conquered again. Whether you see even those who have not won a medal, they have also given their season best or their personal best as a team leader or as a senior athlete. When I look at their performance, it really makes me feel proud of the way they have trained, the way they have prepared, and the way they have shown international class standards while performing in a competition. Undoubtedly. Let me take that question to Bhavina. Bhavina, congratulations, first of all, for winning that medal. You have performed exceptionally well, and you defeated 4 level higher ranked players and, of course, Serbia's defending champion. From where do you draw that confidence and also that exemplary strength? बस हार्ड वर्क है और तो मैं यही बताऊंगी कि मैं जो मेरा मतलब डेडिकेशन है उसको ही मतलब बोलूंगी कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन की बात कर रही हैं आप, और हम लोग सब ने उस मैसेज को मिस नहीं किया है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने आपको कॉल किया था। कैसा था वो मोमेंट? वो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। इवन मुझे क्या बोलना चाहिए वो ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उनको हेलो भी कैसे करूं वो भी मतलब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। ओके, योगेश, कम इन ऑन दिस। सबसे पहले बधाई, मुबारक हो, सिल्वर मेडल जीता है आपने देश के लिए। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू ट्रेन ड्यूरिंग द पैंडेमिक विदाउट अ फॉर्मल कोच, नो फैसिलिटीज एंड नो स्टेडियम? ट्रेनिंग तो मतलब अच्छी कर पा रहा था क्योंकि मैं नवल सर के पास कर रहा था अप्रैल तक, और कोविड की वजह से मैं घर पे चला गया था, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था और खुद से कर रहा था उस टाइम पे मैं वर्कआउट। लेकिन इतना दिक्कत नहीं हुआ था क्योंकि मैं सारी मतलब वीडियोस वगैरह भेजता था उनको, नवल सर को, और वो देखते थे और पूरा जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स वगैरह होते थे ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताते थे। और हम लोग सबको वो माहौल याद है जब आपको मेडल जीता था और आप रो पड़े थे। रिवाइंड करके बताइए क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त? एग्जैक्टली मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था उस फीलिंग को कि मैं कैसे मतलब बताऊं, और कुछ भी मतलब मैं बोलना चाह रहा था तो मेरे आंसू ही निकल रहे थे क्योंकि इतना बड़ा मेडल आया था मेरा। क्योंकि
बहुत टाइम से मैं मतलब हार्ड वर्क कर रहा था और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अचीव कर पाऊंगा, इतने अच्छे लेवल पे मैं पैरालंपिक्स में मेडल लेके आ पाऊंगा इंडिया के लिए, देश के लिए सिल्वर मेडल। और मुझको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और वो खुशी के आंसू में से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे थे। खुशी के आंसू, आपने सही बोला, बिल्कुल। सुमित, of course, let's not forget, and a quick reminder for our viewers, India created history when Neeraj Chopra won a gold medal in javelin, and now it is Sumit who has won a gold medal in javelin in Paralympics. You started as a wrestler, and after that unfortunate incident, you took up javelin. Was it love for sports, या आप दुनिया को दिखाना चाहते थे आप किसी से कम नहीं? मेरा जैसे मैं आर्मी एयरफोर्स, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैं डिफेंस के बैकग्राउंड से हूँ। तो हर एक फौजी यही चाहता है कि उसका लड़का भी या जो भी बच्चा है उसका फौजी बने। तो मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं फौजी बनूं, बट वो सपना 2015 में एक्सीडेंट से टूट गया था। तो उसके बाद मैं कॉलेज में जाने लगा। तो शुरू में मैंने यही सोचा कि 9 to 5 जॉब अब मेरे लिए ठीक रहेगी लाइफ को, एक लाइफ बिताने के लिए। बट थोड़े टाइम बाद मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, 9 to 5 जॉब में वो एक थ्रिल सा नहीं है जो जिसके लिए मैं बना हूँ। और मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, मतलब 9 to 5 जॉब इज नॉट फॉर यू। तो उसके बाद मैंने गेम में आने की सोची। पहले मेरे को पैरा एथलेटिक्स के बारे में नहीं पता था, तो गांव में पैरा एथलीट है हमारे राजकुमार भाई साहब, उन्होंने मेरे को पैरा एथलेटिक्स के बारे में बताया और मेरे कोच के पास लेके गए वो। तो वहां से मैंने जेवलिन स्टार्ट किया था। पहले मैंने डिस्कस से स्टार्ट किया था, लाइक 4-5 दिन मैंने डिस्कस फेंकी। उसके बाद मेरा मन नहीं किया डिस्कस करने का। उसके बाद मैंने जेवलिन को जब छुआ तो एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। तो उसके बाद जेवलिन एक वो, क्योंकि हल्की भी लगती है जब कोई शुरू में उठाता है जेवलिन, तो कि हल्की अभी फेंक दूंगा, लेकिन नहीं, बहुत ही टेक्निकल इवेंट है जेवलिन थ्रो। वो बाद में पता लगता है जब आप रेगुलर उस पर वर्कआउट करते हो। तो एक जेवलिन से अलग सा प्यार सा हो गया था, उसकी वजह से ही मैंने जेवलिन चूज की थी। इस बातचीत में now let's bring in Nishad. Nishad, you lost one of your limbs at the age of 7. It is very difficult to get oneself back in mainstream after such an accident. Tell us about your journey. कैसा रहा है सफर? The difficulties and the challenges. पहले तो मेरा फैमिली का सपोर्ट ही रहा मुझे कि मेरे मदर खुद एक स्पोर्ट्समैन है और पापा तो फार्मर्स है। तो मेरे मदर और मेरे फादर ने कभी डिमोटिवेट नहीं किया, तू ये काम मत कर या तू ये मत खेल, तुझे चोट लगी हुई है ऑलरेडी, तुझे और चोट लग जाएगी। हाँ, ये है कहीं जैसे और जगह जाने से रोकते थे, वो मेरे लिए अच्छी बात थी कि वो मुझे रोकते थे और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये गांव में भी नहीं ऐसे किसी ने बोला कि तू ये है, तू ऐसा करेगा। गांव का भी हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है, हमेशा अच्छा ही बोला मेरे लिए, फिर तू अच्छा करेगा, तू किसी मुझे तुम्हें या जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो यही सभी की दुआ थी, आशीर्वाद था, तो यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। निशाद, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, ये भी बताया कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी सक्सेस में। वो he has been your strongest pillar of support as well. Tell us about your family. फैमिली का सपोर्ट देखकर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत जरूरी था मेरे लिए। और मेरे पापा ने बहुत मेरे सपोर्ट किया। और मुझे जब फर्स्ट टाइम मम्मी ने मेरे को पंचकुला छोड़ा तो मुझे 2500 रुपये दिए थे कि ये ले बेटा, कि ये तुम्हारे महीने की है, तो उसमें तुमने जो भी खाना पीना है इसी में होगा तुम्हारा। तो वो टाइम मुझे अभी भी याद है कि जिस टाइम मम्मी ने 2500 रुपये दिए और उनकी आंखों में आंसू थे। और आज वो समय थोड़ा लग गया है, पहले एक समय लगता। तो धीरे धीरे करके वहां पर ये था पहले कि वहां पर हम कोच के साथ बात करेंगे उनकी फीस क्या है और वहां पर रहने का खर्चा कितना होगा। तो हमने डिसाइड किया था पीछे से कि उनकी फीस, क्योंकि बड़ा शहर है, मैं पहली बार आया था बड़े शहर में, तो कोच इतने बड़े स्टेडियम में, तो उनसे यही पूछा कि आपकी फीस क्या है। हमने प्लान बना के 2000, 2500, लास्ट 3000।
जो इसके ऊपर उनकी फीस हुई तो हम जब वहीं से उनको सर को राम राम करके अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो उनसे फीस पूछा तो सर ने यही बोला कि हमारी कोई फीस नहीं, हम इधर गवर्नमेंट कोच है। तो वो हम खुशी भी हुई थी उस टाइम, और ये भी लगा था यार इतना बड़ा स्टेडियम है कि इनकी फीस ही नहीं है कुछ। तो अच्छा था वो। तो रहने की प्रॉब्लम थी तो सर ने बोला कि मैं इनको रूम दे दूंगा अपने खिलाड़ियों के साथ, तो अंदर रूम दे दिया मेरे को रहने के लिए। तो वहां पर धीरे धीरे करके मेरा खर्चा जो है 2500 से 10,000, 15, 20, 25, 30, 40 तक चला गया था, जो मतलब बहुत मुश्किल हो गया मेरी फैमिली के लिए भी। और कोच साहब ने भी काफी सपोर्ट किया था मेरे को उस टाइम, और एक दो उनके मित्र हैं उनसे भी मेरे को मदद करवाई। जिस टाइम मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेला पहला तो भी इतना वो नहीं हुआ। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के जब मेडल आया तो गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट मिला, और साई का, फेडरेशन का, और हिमाचल गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिला। फिर तो भी ठीक चल रहा है। Deepa, this has been the biggest contingent ever of Paralympians. Winning medals against odds, the challenges also of a health emergency such as pandemic that we saw, COVID-19. How did the athletes train themselves? And then winning medals in categories you least expect. How did it actually play out? When you're saying that we were expecting goals and were we prepared, yes, as Paralympic Committee of India, we were prepared because we had shortlisted the best of the talent, and they were nurtured beautifully through the Target Olympic Podium Scheme and continuous funding from Sports Authority of India. We have seen a remarkable improvement, basically for one reason, that this time the athletes, taking their experience from the previous senior athletes, for example, we have passed on our experience, and they have learned when they saw the Rio medals happen, and they realized that sports sciences are important. Suddenly there was a shift, whether it was the coaches, whether it was the athletes, they accepted the fact that it is very important to include sports sciences. COVID helped us generate awareness. When I say helped us, everybody feels that COVID came and pandemic created a disruption. Yes, on ground disruption, yes, but it gave a lot of time through the webinars, through the regular communications, for an athlete to accept sports sciences, learn about nutrition, learn about fitness, learn about conditioning, learn about injury management, physiotherapy, the role of various visualization exercises, mental well-being. That worked because they sat down and they listened, they communicated, and then came the scientific approach of training. Yes, you're talking about that scientific approach of training. Let me go back to the Paralympians again. भवीना, गुजरात सरकार ने अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है। इस तरह के बहुत सारे रिकग्निशन मिल रहे हैं आप सबको। आपको लगता है ये जो प्यार, अवार्ड, अफेक्शन जो मिल रहा है अभी, वो सालों भर मिलना चाहिए? उस वक्त नहीं जब एथलीट्स देश के लिए मेडल जीतते हैं, उस वक्त भी जब एथलीट स्ट्रगल कर रहे हों? बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें मतलब कंटिन्यूस होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब ऐसे बाहर आना चाहते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं बननी चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, ताकि वो भी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अपनी गेम को या अपनी फील्ड में जहां पर भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको क्विट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स रहती है प्लेयर्स को, एथलेट को, तो उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो जब शुरुआती टाइम होता है उसमें उनको बहुत जरूरत रहती है, तो वो सपोर्ट मिलना चाहिए। आप उस सपोर्ट की बात कर रही हैं बबीना, मुझे अपने बारे में बताइए, क्योंकि टेबल टेनिस ऐसा स्पोर्ट है जहां पर ओलंपियंस को भी उतना सपोर्ट शायद नहीं मिला हो।
आपका जर्नी कैसा रहा और किस तरह की मुसीबतें आपके सामने आई? एग्जैक्टली मेरे केस में ऐसा था कि मेरे जो हस्बैंड है और मेरे जो मतलब मेरे फादर है, उन्होंने मतलब बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट किया मुझे, कि चाहे उन्होंने लोन ली या मतलब मुझे यहाँ तक आने के लिए उन्होंने मतलब कभी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये कभी पैसा मतलब मेरा वेस्ट हो रहा है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता था कि जो चैंपियनशिप्स रहती थी तो उसमें मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती थी, मतलब मेडल जीत के नहीं आती थी। तो कभी उन्होंने मुझे ये चीज़ जताई नहीं है, कभी बताई नहीं है कि हाँ भाई कि आपके पीछे हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत मैटर करती है उस टाइम, कि उसी से ही मोटिवेट होते हैं हम, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मतलब अ, अपने हस्बैंड ही देख लीजिए और मतलब मेरे फादर ही देख लीजिए कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे मतलब नेक्स्ट चैंपियनशिप में इससे भी अच्छा करना है, इससे बेटर करना है। And Sumit, it needs a lot of mental strength to fight back after the kind of accident that you suffered. किसने आपको इंस्पायर किया था कि जाओ जाके लड़ो और जीत करके आओ? 2015 में एक्सीडेंट के बाद मैं जब एएलसी सेंटर में गया, जो अब लाइक अपने की तरह डिसेबल जो मेरे दोस्त भी हैं आज के टाइम में, उनसे मिला। तो एक बात मैंने देखी कि एक्सीडेंट के बाद में वो अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इतना एक्सीडेंट से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई नशे में घुस रहा है, कोई क्योंकि उस गम को भुलाने के लिए कोई मतलब कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने मेरे कभी मन में नहीं आया कि मेरे को गलत रास्ते पे जाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सीडेंट से बहुत कुछ खो चुका था मैं अपनी लाइफ में। तो बस यही था कि अब कुछ अलग करके दिखाना है पूरे वर्ल्ड को, कि जो बाय चांस आगे कोई एक तो होगा जो मेरे को इंस्पिरेशन के तौर पे लेके चलेगा, और बाय चांस किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो वो मोटिवेट रहे, गलत रास्ते पे ना जाए, जिससे कुछ नुकसान उसका पहले ही हो चुका है और लाइफ अपनी लाइफ बर्बाद ना कर ले। मैं एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहता था। आपने बिल्कुल किया है, क्योंकि आज आप करोड़ों भारतीयों के इंस्पिरेशन हैं. लॉट ऑफ पीपल आर ड्रॉइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम योर स्टोरी, सुमित. योगेश, you know, what difficulties did you face because of your disabilities? What was one thing that told you कि लड़ाई टफ है, लेकिन चढ़ाई आपको करनी है, रास्ता बहुत कठिन होगा लेकिन जीतना है? What was the motivation? जज्बा तो यही था कि मतलब जैसे भी कोई भी मेरे को मतलब डिसेबल था तो बहुत ज्यादा परेशान करते थे। स्कूल में भी काफी मतलब दोस्त वगैरह छेड़ते थे, मतलब बुली करते थे। लेकिन जब मैं 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज में गया, तब मुझे मेरे जनरल सेक्रेटरी थे जो सचिन यादव थे, उन्होंने मुझे बताया कि तू गेम कर, तू बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई में अच्छा तो है ही है, तू गेम कर, उससे तेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। फिर मेरे को फ्रेंड्स इतने अच्छे मिल गए कॉलेज में, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और मैं स्पोर्ट्स की तरफ आ गया। और मतलब अब मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी से कम हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है अब उस चीज की मुझे। मैं अपने आप को मतलब डिसेबल नहीं मानता, क्योंकि डिसेबल का मतलब ये नहीं कि एक डिसेबिलिटी होती है। डिसेबल का मतलब होता है कि दिस इज एबल। बिल्कुल सही कहा आपने. निशाद, मैं कहीं पे पढ़ रही थी, ये लिखा हुआ था कि आप रात में भी अब मेडल पहन करके सोते हैं. क्या है वो, दिमाग में क्या चलता है? ये लगता है कि ये मेडल मेरा है, मुझे हमेशा दिखाना है? मुझे कंपटीशन की बात करो तो उसी टाइम यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सिल्वर मेडल जीत चुका हूँ या मैंने ये कर दिखाया है। ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था उस टाइम कि फाइनली मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ, क्योंकि वहां पर ऑफिशियल थे। तो 2 ऑफिशियल से मैंने 4 बार पूछा कि मैं फाइनली सिल्वर मेडल विनर। तो उन्होंने मेरे शो में रिजल्ट, मैंने उनको बोला कि रिजल्ट दिखाओ मेरे को। तो उन्होंने रिजल्ट दिखाया मेरे को 4 बार की फाइनली विनर ब्रॉन्ज में सिल्वर मेडल। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोच साहब पीछे से बोल रहे पिन शायद आ गया बोल रहे, मुझे पता क्या आ गया, सेकंड आया, थर्ड आ गया।
तो सर वो तो मैं ऑफिसर से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि सिल्वर मेडल पोजीशन आपकी। तो मुझे फिर थोड़ा एहसास हुआ कि चलो ठीक है फिर। भवीना, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगी? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो बस आप उसके पीछे लग जाइए। अपने आप को कम कहीं पर भी मत समझिए। हाँ, प्रॉब्लम्स आएगी, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम्स की तरह ना देखे। उसको मतलब एक पॉजिटिव वे में देखे कि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उससे हम मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसको मतलब हमेशा अपना मतलब प्रॉब्लम्स को एक प्रॉब्लम्स की तरह ना देखें। तो यही मैं खास करके ये बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम से ही हमें हमारी ताकत बढ़ती है। तो बस अपनी फ़ील्ड में मतलब पूरा डेडिकेशन उसको दे दीजिए। आप जो भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, सारी चीज़ें उसके लिए ही करिए, तो ऑटोमैटिकली आप जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। Sumit, this entire story of victory against all odds, आप लोग सब are an inspiration to this entire country. What's your message, Sumit? फैंस तो नहीं कहूंगा मैं उनको, अपने भाई, अपने दोस्त, देशवासी कहूंगा। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि कुछ भी आपके साथ घटित होता है तो उसको नेगेटिव वे में ना लें, और बाई चांस आपने कुछ लूज कर दिया, बॉडी पार्ट है, कुछ भी है, तो उसके चक्कर में वो अपना और ज्यादा नुकसान न करें, और नशे इन सब से दूर रह के अपना हार्ड वर्क करें। आप किसी भी फील्ड में, वेदर यू आर एथलीट और नॉट, तो अपना 100% दे और कोशिश करें कि पूरे देश को आप पे प्राउड हो। Absolutely. Thank you so much for your time, Yogesh, Bhavina, Nishat, Sumit, and of course Deepa, for sharing your experience, your stories, and of course those wonderful message for all Indians. That's all from us. Thanks so much for watching.